Greetings to all students. So we are going to discuss 50 MCQs of physics, which will be helpful for your competitive exams. And if you'll try these questions, you can do it comfortably, and this will be helpful in your coming exams. So let's start question 1. If phi is surface integral of E dot ds is equal to 0 over a surface, then what which option is correct? यहाँ पे चार options हैं. First is electric field inside the surface and on it is 0. यहाँ पे एक चीज तो correct है, दूसरी चीज wrong है. The electric field inside the surface is necessarily uniform. This is wrong. The number of flux entering, अगर गॉस थ्योरम आपने पढ़ी हो अच्छे से तो you can remember number of flux line entering the surface must be equal to the flux leaving that surface. So this option is correct. And next one, all charges must necessarily be outside the surface. We know that inside charge exist नहीं करता, जो भी charge होता है वो surface पे आ जाता है सारा according to Gaussian surface. So phi, according to this question, phi surface integral of E dot ds is equal to 0. It means charge inside charge की वैल्यू नहीं है और वो सारा चार्ज आउटसाइड पे है. साथ के साथ ये क्वेश्चन इसमें आपके दो ऑप्शंस करेक्ट है. तो फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो फ्लक्स को लेकर है, नंबर ऑफ फ्लक्स एंटरिंग टू द सरफेस विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लीविंग दैट सरफेस. एंड सेकेंड इज charge, all charge must necessarily be outside the surface. So these two options will be correct. यहाँ पे इस स्लाइड में जो 25 क्वेश्चंस का मैंने सेट बनाया है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें दो ऑप्शंस करेक्ट हैं. तो जस्ट रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली एंड देन आंसर. Second question is the electric field at a point is फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये सारी चीजें आप एक बार दिमाग में रिकैप्सुलेट कर लो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही. नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डाइपोल ध्यान में रखना है और फिर इसके ऑप्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है ये और एट ए पॉइंट पूछा गया है क्वेश्चन में. सो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. रीड इट केयरफुली. सेकेंड इज कॉन्टिन्यूस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट. Second is discontinuous only if there is a negative charge at that point. ऐसा कुछ compulsion नहीं है. And D is discontinuous if there is a charge at that point. We know that electric field lines are continuous, which make from positive to negative. तो अभी आपका अगर दूसरा कोई चार्ज बीच में आता है फिर discontinuous होगा, अदरवाइज ये continuity में होती है. So option number ऑलवेज कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि आपके यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे एक और चार्ज, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इफ देयर इज एनी चार्ज तो डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे. इट इज करेक्ट. फर्स्ट इज रॉन्ग. बी इज कॉन्टिन्यूस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट. अगर सपोज पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हो तो आप कॉन्टिन्यूसली ड्रॉ करते हो. तो ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3. It is again similar to question number 1, but there are some difference. If there are only one type of charge in the universe, then which one of these option will be correct? Phi E dot ds is not equal to 0 on any surface. ये किस केस में होगा? Just remember, not equal to 0. Next is phi E dot ds is equal to 0 if charge is outside. ये आपने अभी भी बताया मैंने, ये correct है. Now it could not be defined का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. E dot ds is equal to phi upon q upon epsilon, and if charge is 0 तो आपका phi E dot ds की वैल्यू 0 होती है. एंड यहाँ पे साथ में लिखा हुआ if charges of magnitude q were inside the surface, जिसकी वैल्यू होती है, अगर चार्ज q की वैल्यू 0 है तो phi E dot ds की वैल्यू आपकी 0 होगी. तो आपका फर्स्ट फॉर दिस क्वेश्चन यू विल बी find out B and D options are correct by using Gauss theorem. Question number 4. In a region of constant potential. Constant potential वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद करना होगा. V is equal to W by Q. Constant potential और साथ के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन पढ़ोगे तो clearly you can
विजुलाइज कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कांस्टेंट पोटेंशियल ध्यान में रखना है आपने, किसके लिए कांस्टेंट पोटेंशियल होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म or electric field is zero, or there can be no charge inside the region, or the electric field shall necessarily change if the charge is placed outside the region. Now, first of all, ये आप फॉर्मूला याद करो जो आपने सॉल्व किया हुआ है। सेकेंड यूनिट है हमारी, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, एंड V की वैल्यू कॉन्स्टेंट बता रहा है, इट मीन्स E शुड बी जीरो। तो इस फॉर्मूले से आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो है, तब आपका पोटेंशियल कांस्टेंट हो सकता है। और सेकंड क्या हो सकता है, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, चार्ज इज ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। तो आपका बी एंड सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। इसका वी के लिए एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है, इफ सम चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द रीजन देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो, so at that reason so V cannot be constant. Now next question number 5 is, if a conductor has a potential V is equal not equal to zero. आप लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, वहां पे कांस्टेंट पोटेंशियल था, यहाँ पे V is not equal to zero है, मीन्स V की कोई वैल्यू है, पोटेंशियल है वहां पे, and there are no charges anywhere else outside, then what should be correct option? यहाँ पे चारों ऑप्शंस क्लियरली पढ़ना है आपके। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करो। First option is there must be charges on the surface or inside itself. Second is there cannot be any charge in the body of the conductor. There must be charges only on the surface. And C, there must be charges inside the surface. आपको जहाँ पे potential not equal to zero है उसके लिए बताना है। If a conductor has a potential not equal to zero and there are no charges anywhere else outside, then only you can easily find out there must be charges on the surface or inside itself. And B is as well as also correct. There cannot be any charge in the body of the conductor, then only you can find out potential will not equal to zero. Because we know charge reside on the outer surface of the closed charge conductor, ये repeatedly पीछे बता दिया मैंने, hence there cannot be any charge in the body of the conductor, so B will be correct. Question number 6, सेकेंड किरचॉफ लॉ है, ये डायग्राम से आपने देखा होगा, किरचॉफ जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ मीन्स करंट लॉ इज there are two laws, voltage law and current law. Is a reflection of conservation of current density is a vector quantity. First of all you should remember. Second is conservation of charge. करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेकेंड रूल के लिए बताया हुआ है, the fact that the momentum with which charged particle approaches a junction is unchanged as the charged particle leaves the junction. D is the fact that there is no accumulation of the charge at the junction. Kirchhoff's junction rule is a reflection of conservation of charge. यहाँ पे जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है which will be equal to जो डिफरेंट करेंट्स की वैल्यू जो वहां से लिविंग आउटसाइड है वो दोनों का सम इक्वल होता है। I1 यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम I1 and I3 they are approaching towards junction and I2 and I4 they are leaving from the junction. So this is correct, and I is equal to, better know, I is equal to what? Q by T, charge flowing per second. So from this question, second option is correct, as well as D option, the fact that there is no accumulation of charge at the, वहाँ पे junction पे charge का कोई accumulation point नहीं होता है, इसलिए आपका D option भी correct है। Next question 7, Biot-Savart's law indicate that moving electron produces a magnetic field B such that, ये क्वेश्चन आप लॉरेंस फोर्स की हेल्प से भी कर सकते हो, F इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी होता है, P एंड B के परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, B इज परपेंडिकुलर टू B, parallel it obeys inverse square cube law, it along the line joining electron observations. तो आप इसको लॉरेंस फोर्स से एज वेल एज यहाँ से भी कर सकते हो, F is directly proportional to or mu naught upon 4 pi q v sin theta upon r square. So B and V are perpendicular to each other for a moving electron which is having velocity v.
नेक्स्ट इज इन अ साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन किस लिए होता है? टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स. अब इसमें यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने हैं कि ये ऑप्शन में कौन सा, विच वन इज मोर करेक्ट. अंडरगोज एक्सेलरेशन ऑल द टाइम, इट इज करेक्ट. जो चार्ज पार्टिकल होता है वो एक्सेलरेटेड होता है और उस वजह से उसका वेलोसिटी चेंज होता है. यहाँ पे स्पीड दो टर्म्स में लिखा हुआ है, स्पीड वर्ड नहीं आएगा क्योंकि वो जो आपका चार्ज पार्टिकल होता है विद डायरेक्शन दोनों डीज में रिवॉल्व कर रहा होता है. speed up between D's because the magnetic field वहाँ पे होता है N and S, slows down with the D's and speed up between the. ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. आपने only first is correct. undergoes acceleration all the time. जो charge particle होता है वो हमेशा accelerate होता है. Next is S is the surface of lump of magnetic field, magnetic material. So for this question you should remember B is equal to mu naught H. फॉर्मूला आपको याद होगा, यहाँ एक्सप्लेनेशन में मैंने दिया हुआ है. H is equal to, from that value H is equal to B upon mu naught. Mu naught is permittivity of free space and mu r is permittivity of medium material medium. तो आपको यहाँ पे बताना है as a surface of lump of magnetic material, so which option is correct. First तो direct correct है, lines of B are necessarily continuous across B. एंड सेकेंड वन जो आप इस रिलेशन से निकालोगे म्यू आर एंड एच में रिलेशन है इनवर्स. सो आपका जो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है दैट इज डी. लाइंस ऑफ एच magnetizing force cannot all be continuous across S. So there are two options correct, A and D. नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्फ इंडक्शन वो लेकर है. सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसका फॉर्मूला आप रिकैप्चुलेट कर लो जल्दी से दिमाग में. Solenoid of length L and area of A with a fixed number of turns N increases as I and A increases, I decreases and A increases, I increases. First of all आप formula इसका याद करो. L is equal to, for long solenoid self induction is mu r mu naught N square A L. N is number of turns per unit length. अगर आप कैपिटल में चेंज करना हो तो आप कैपिटल N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर लिख सकते हो, तो आपका एक L कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट म्यू आर म्यू नॉट N स्क्वायर कैपिटल N स्क्वायर A अपॉन L. तो आपकी ये वैल्यू आएगी. अब अकॉर्डिंग टू आपका जो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है इसमें से जो करेक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखो, एरिया अगर बढ़ेगा तो L बढ़ेगा एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आपका डायरेक्ट रिलेटेड है. बट करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. आई डिक्रीज होगा और एरिया बढ़ेगा तब आपका सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेल्फ इंडक्शन कब बढ़ेगा ऑफ सोलेनॉइड जिसकी लेंथ L है, एरिया A है एंड नंबर ऑफ टर्न्स N फिक्स्ड है. तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा सेल्फ इंडक्शन का. For that part, question option B is correct of this question. Next, an inductor of reactance 1 ohm. Inductor का reactance given है that is XL, and resistor का resistance given है 2 ohm. Are connected in series to the terminal of 6 volt battery हमें given है, potential given है, and the power calculate करना है. You know that very inductive circuit के लिए power का क्या formula था? P is equal to EI cos phi, where phi is the phase difference. टर्मिनल ऑफ AC फॉर द सर्किट निकालना है. फिर P एंड वोल्टेज की वैल्यू आपकी 6 वोल्ट गिवन है. आप इस फॉर्मूले में E RMS तो गिवन है लेकिन I नहीं गिवन है. I को कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम दैट फॉर्मूला. बेसिक I RMS इज इक्वल टू E RMS अपॉन Z. Z कैसे निकालोगे? क्योंकि हमारा इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है. आप R की वैल्यू पुट करो और XL की वैल्यू पुट करो, दैट इज 1 इज गिवन √5 मिलेगा. वहां से आप I निकालोगे और फिर आप पावर फैक्टर निकालोगे. P इज इक्वल टू I की वैल्यू 6 अपॉन √5 A आ गया एंड cos phi आप यहाँ से निकालोगे तो R by Z होता है. R की वैल्यू इज गिवन दैट इज 2 ओम एंड Z अभी आपने निकाला √5, तो cos 5 की वैल्यू आप पावर के फॉर्मूले में पुट कर दो, यू विल गेट 14.4. दैट थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12. आउटपुट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज डिक्रीज करता है एंड करंट को इंक्रीज करता है. इट इज मेजर टू बी 24
वोल्टेज स्टेप डाउन का वोल्टेज गिवन है जो हमें दे रहा है वो 24 वोल्ट है सेकेंडरी वोल्टेज। व्हेन कनेक्टेड टू 12 वॉट बल्ब पावर इज गिवन 12 वोल्ट। वैल्यू ऑफ पीक करंट निकालनी है, आई नॉट की वैल्यू निकालनी है एंड यू नो दैट आई नॉट इज इक्वल टू आई एट द रूट 2। आई जो आपका सेकेंडरी वोल्टेज में यहाँ पे है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो जस्ट लुक एट द फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी आई होता है, आपको इजीली पता है, सेकेंडरी टर्मिनल के लिए हमने सॉल्व करना है। तो आई एस हमें कैलकुलेट करना, आई एस इज इक्वल टू पी एस अपॉन वी एस 24, पी इज 12, तो आपको 0.5 मिलेगा और पीक वैल्यू को करंट में फॉर्मूले में रख दोगे, विल गेट 1 अपॉन अंडर रूट 2, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अ लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो थोड़ा सा याद करना है इसमें कि क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेटिंग simultaneously, then electromagnetic waves are produced, or when an accelerating charge particle moves, electromagnetic waves can produce। तो अभी आपका वहाँ पे इसकी इक्वेशन गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, E is equal to E naught I cap cos ओमेगा kz माइनस ओमेगा t। और आपको बताना है कि जब ये वेव रिफ्लेक्ट होगी तो वो एक्सप्रेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो रिफ्लेक्टेड मीन्स 180 डिग्री फेज डिफरेंस है, 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे वो वेव रिटर्न कर रही है तो आपका ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव। जब वो वेव रिफ्लेक्ट कर रही है यू विल गेट बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। रिफ्लेक्टेड वेव इज E naught cos omega kz plus omega t। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, with the help of that concept you can easily judge this is C is correct, 1:n। electric field and magnetic field की value का contribution half half होता है, so energy of electromagnetic wave is divided equally between electric field and magnetic field vector, so option C will be correct, that is 1:1। question number 15, this is again from electromagnetic wave chapter। If E and B represent electric and magnetic field vectors of electromagnetic wave, direction of propagation, we know very well electric field and magnetic field are perpendicular to each other, and the wave propagate will be also perpendicular to the direction of E and B. So option D will be correct, E cross B, in that direction wave will propagate। Question number 16, the source of electromagnetic waves can be a charge। अभी आपको पीछे आई थिंक बोला था बीच में मैंने, moving with the constant velocity, no। moving in a circular orbit, yes it is possible। at rest तो बिल्कुल possible नहीं है, and falling in an electric field। constant velocity, no। moving in a why, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो वो एक्सेलरेशन वहां पे जीरो हो जाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की हेल्प से। तो आपका ये आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड इज करेक्ट, मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एट रेस्ट इट इज नॉट पॉसिबल, एंड फॉलिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिक्वायरमेंट है ही वहां की। सो ऑप्शन ए सॉरी बी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम। O2 की बात कर रहा है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2। इन दैट मॉलिक्यूल न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ 2 एटम। न्यूक्लियर फोर्सेस का क्या रोल है या क्या एक्सटेंड कहाँ तक है, उसके लिए यहाँ पे बात की गई है। We know that it is not, first option is it is not important because nuclear forces are short range force, this is correct। second is it is an important as electrolyte for binding two atoms। हम दो एटम्स की बात कर रहे हैं और एक जो मॉलिक्यूल बना रहा है, तो उसमें आपने न्यूक्लियर फोर्सेस ही है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ important, they are wrong। important because oxygen nucleus have equal number of, this is not the case। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं है जो हमें क्वेश्चन में पूछा होगा। अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट इज करेक्ट, न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्स, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। between two nuclei of two atoms। Next is
बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल ऑफ एटम लाइट न्यूक्लियाई की केवल बात करता है, जिसमें उसने हाइड्रोजन एटम लिया था जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है जो आउटर साइड में रिवॉल्व कर रहा है. तो जस्ट रीड ऑल 4 ऑप्शंस. विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म. इट इज करेक्ट. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो H2 बन जाएगा, उसके लिए हमारा एप्लीकेबल नहीं होता बोर्स थ्योरम. नेक्स्ट इज विल नॉट बी एप्लीकेबल एज इट इज इन फॉर हीलियम एटम. अगेन ये आपका 2He4 हो गया, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है. इट इज वैलिड ओनली एट रूम टेम्परेचर. दिस इज नॉट इन कॉन्सेप्ट. प्रेडिक्ट कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन्स. तो ये आपका predict as well as discrete spectral lines. It is not appropriate for this question, so only A and B can be correct. यहाँ पे भी लिखा हुआ हाइड्रोजन will not sorry correct, in which it is written will not be applicable. हाइड्रोजन ये भी ठीक है, and will not be applicable for helium. It is also correct. So both these two options are correct. Next is heavy stable nuclei have more neutrons than protons. Heavy stable, heavy ये ध्यान में रखना आपने, heavy nuclei की यहाँ पे बात की गई है. This is because of the fact heavy nucleus में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है. प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं, वहाँ रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाते हैं. सो इन न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी more than that of protons. एंड इन लाइट न्यूक्लियाई ये इन दोनों का नंबर सेम होता है. तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपने रीड करने हैं कि विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट इज न्यूट्रॉन्स आर हैवियर देन प्रोटॉन्स. सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन आर रिपल्सिव. Neutrons decay into proton through beta decay, and D is nuclear forces between neutrons are weaker than between protons. तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है. न्यूट्रॉन्स आर हैवियर देन प्रोटॉन्स, ये भी कुछ पॉइंट नहीं है. इलेक्ट्रो रिपल्सिव फोर्सेस लिखा हुआ है प्रोटॉन्स के बीच में, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा. न्यूट्रॉन्स पे कोई न्यूट्रल चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. ये आपका अगेन फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है एंड इट इज वेरी इजी फॉर ऑल. इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन केस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग शेल एट एनी. जब वो इंटीरियर पॉइंट पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है. E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. q इज इक्वल टू 0, देन E इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. The width of fringe obtained when light of wavelength 6000 angstrom is 2 millimeter. यहाँ पे आपको लाइट की वेवलेंथ लैम्डा गिवन है एंड width given है 2 millimeter. What will be the fringe width if the entire apparatus is immersed in liquid of refractive index? उस सपोज इस पूरे apparatus को अगर लिक्विड में डिप कर दिया गया है, जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1.23 है, फिर आपको फ्रिंज विड्थ बताना है, बीटा बताना है, जो वो चेंज हो जाता है. बीटा की ये फॉर्मूला आपको याद होगा. बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन D. कैपिटल D इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन एंड स्मॉल d इज डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स. तो ये फॉर्मूला एक बार याद कर लो, ये आपको पता होगा जब आपने ये चैप्टर कंप्लीट किया होगा. सो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम गिवन है. D एंड हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, 2 मिलीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वैसे आप इजीली यहाँ से कर सकते हो इस फॉर्मूले से. जब आप लिक्विड मीडियम के लिए बीटा डैश लिखोगे तो बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश D अपॉन D. ये दोनों डायमेंशंस तो सेम है, कैपिटल D और स्मॉल d. तो आपका आ जाएगा बीटा डैश अपॉन B इज इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा. एंड क्योंकि हमारा क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, तो वो हमें यूज करनी है. तो लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इनवर्स रिलेशन होता है. एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है. यहाँ पे लैम्डा डैश और ये म्यू डैश है. म्यू डैश इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड मीडियम. एयर के लिए वैल्यू 1 लिखी हुई है, यहाँ पे है ये 1.33. तो इस वैल्यू को 1 अपॉन म्यू को बीटा डैश अपॉन बीटा के इक्वल कर देना है एंड यू विल गेट बीटा डैश की वैल्यू हमने निकालनी है बीटा अपॉन म्यू. तो यू विल गेट बीटा इज 2 मिलीमीटर गिवन है एंड म्यू इज 1.33. तो जब आप सॉल्व करोगे तो mm में ही सारे आंसर हैं. जब भी सॉल्व करोगे यू विल गेट इजीली 1.5 मिलीमीटर.
क्वेश्चन नंबर 22 इंटरफेरेंस से रिलेटेड है। जो इंटरफेरेंस की कंडीशन हम निकालते हैं यंग डबल स्लिट में, यंग इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में। कंसीडर इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटीज आई एंड पर। दो सोर्सेज की इंटेंसिटीज गिवन है हमें, I1 एंड I2 गिवन है। What is the ratio of intensities at the point where the phase difference is pi? Our phase angle भी given है, phase difference between two wave sources हमें pi 180 डिग्री given है। ये फॉर्मूला याद करो, जो इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम जो कैलकुलेट करते हैं फॉर यंग एक्सपेरिमेंट, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, एंड यू नो वेरी वेल I इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है। एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी में I is directly proportional to a square. A is given, A1 is 1 and A2 is 4i given है। इंटेंसिटी के यहाँ पे इंटेंसिटीज गिवन है के फॉर्म में हमारा एम्पलीट्यूड गिवन है, तो हमने इस फॉर्मूले को सिंपली कन्वर्ट कर लिया इंटेंसिटी वाले फॉर्म में। यहाँ पे देखो ये I1 है, I1 is A1 स्क्वायर, ये I2 है, I2 is A2 स्क्वायर। तो A2 स्क्वायर की जगह पे हमने 4i लिखा, A1 स्क्वायर की जगह पे I है। 2 A1 A2 is 1 and 4 under root I1 I2 cos pi is 180 degrees minus 1। तो आपका यहाँ पे आएगा 4i plus I 5i minus 2 into 2, 4 का आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल आ जाएगा ये वैल्यू minus 4i। तो 5i minus 4i is you will get I। So first option will be correct। Next question is question number 23rd। Polarizing है, Brewster's law पे based है ये, mu is equal to tan IP। पोलराइजिंग एंगल गिवन है IP 60 डिग्री, क्रिटिकल एंगल निकालना है तो आपको यहाँ पे म्यू और C का रिलेशन याद करना होगा। म्यू इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है tan IP के इक्वल। तो tan IP 60 डिग्री, 60 डिग्री रखोगे आपका ये आ जाएगा 1.732। इसमें क्योंकि आपने यहाँ पे C निकालना है तो म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C एंड साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। म्यू इज आपने ऊपर जो अभी कैलकुलेट किया है 1.732, ये वैल्यू पुट करोगे you will get C is equal to sin inverse 0.577। So option B will be correct। Next, it is again based on light incident on a transparent mirror found to completely plane पर Brewster's law पे based है ये। And we know that in Brewster's law reflected ray and polarizing ray are perpendicular to each other, 90 डिग्री का उन पे एंगल होता है। तो आपका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का 1.57 एंड द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ ग्लास निकालना है हमने, तो tan इनवर्स ये वैल्यूज दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमाइंड दैट म्यू इज इक्वल टू tan IP भी, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1.57 गिवन है और आपको R निकालना है, तो म्यू इज इक्वल टू tan IP, म्यू इज 1.57। IP निकालोगे यहाँ पे tan इनवर्स, ये वैल्यू आप टेबल में देखोगे तो आपको मिलेगी 57.5 डिग्री पे। एंड फ्रॉम ब्रूस्टर्स लॉ R प्लस IP इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। IP हमने ऊपर निकाला हुआ, IP की वैल्यू आप पुट कर दी तो R you will get 32.5 degree। This will be B option will be correct। Question number 25। होल, दिस इज फ्रॉम सेमीकंडक्टर चैप्टर। होल क्या होते हैं बेसिकली, जहाँ जब कोवेलेंट बॉल ब्रेक होता है तो वहाँ जो स्पेस क्रिएट होता है उसको हम होल कहते हैं, एम्प्टी स्पेस को होल कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इज अ वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। जब एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो इलेक्ट्रॉन जब वहां से जाता है तो वो जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसको हम होल कहते हैं। Absence of free electron, wrong, and artificially created particle, wrong। So B will be correct। So I hope these are all 25 questions। These kindly mention your questions and doubts in comment section। Next 25 question we'll do in next videos। So kindly subscribe to my channel for further updates, and after that I can make chapter wise questions, unit wise question। So be stick to this channel। Good luck, stay safe।